Hello students, how are you? Okay, as you can see on your screen, I'll be taking your maths classes. Today is the first video lecture and we are starting off with real numbers, the very first chapter in your book. Have you seen your book? What's the name of the first chapter? Yes, it is real numbers. So any idea what is a real number? Any number that is real should be a real number. Oh, come on, what is that? Okay, let's take an example 2. 2. What do you think? Is it a real number? Yes, it is. Another example 15. Is this real? Yes, this is real. 0. Is this real? Yes, this is also real. So, what is a real number? Okay, before we get into this question, let's see this cartoon. Everybody loves cartoons. So, what's the first girl saying here? Raima, I am 5 years elder to one third of your age. So, who is Raima here? The second girl is Raima. Then what does Raima say? Oh, really, Riva? So, Riva is the first girl. I am 15 years old now. Then how old are you? Raima is saying, I am 15 years old now. So, who is 15 years old now? Raima is 15 years old now. Then how old are you? How old is Riva? Of course, Riva knows how old she is, but we don't know how old is Riva. So we have to calculate. How can we calculate? 5 years elder to one third of your age means Riva's age is one third of Raima's age. Raima's age is 15. So 15 divided by 3. One third of Raima's age. 5 years elder to that means Riva is 5 years older than that. That gives us 5 plus 5 is equal to 10 years old. So Riva is 10 years old. Raima is 15 years old. Who is older? Of course, Raima is older. Raima is older than Riva. It was a simple question. But what is a real number here? इसका रियल नंबर से क्या कनेक्शन है? कोई लेना देना नहीं लग रहा है. Basically, whatever numbers we have seen here are all real numbers. जितने भी नंबर्स क्वेश्चन में देखे हमने, कौन कौन से नंबर देखे हैं? कौन कौन से नंबर देखे हैं हमने? हमने लिखा है 15, हमने लिखा है 3, हमने लिखा है 5, हमने लिखा है 10. ऑल दिस नंबर्स आर रियल नंबर्स. ठीक है, स्टिल व्हाट इज अ रियल नंबर? क्वेश्चन अभी तक बाकी रह गया. ओके, विल ट्राई टू एड्रेस दिस क्वेश्चन नाउ. What is a real numbers? So before we talk about real numbers, we should know some other numbers also, like natural numbers. Do you remember what is a natural number? We have read it several times. Actually, it comes in every class. Natural number. Numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 100, 200, 500, 10,000, 1 lakh, 1 million. All the numbers are natural numbers. 1, 2, 3, 4. किसी भी चीज को काउंट करना है हमें. काउंट करने के बाद जो नंबर मिलता है, that number is natural number. किसी भी चीज को you can count anything in the world. After counting, whatever number comes, whatever number may come, that is a natural number. How many fingers do you have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 is a natural number. If you count the fingers in both the hands, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 is a natural number. So can you think of a number which is not a natural number? ऐसा कोई भी number जो natural नहीं है. Can you tell a number which is not natural?
जीरो, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये जीरो दिख रहा है यहाँ पे, जीरो, अ बिग जीरो। जीरो, कैन यू काउंट जीरो? इफ यू आस्क मी हाउ मेनी पेंसिल्स डू आई हैव, मेरे पास कितनी पेंसिल है? आई जस्ट हैव वन स्टाइलस। I do not have any pencils, so there are no pencils. That means I have zero pencils. But can you count that there is zero pencil with me? Count कर सकते हो मेरे पास पेंसिल नहीं है, जीरो पेंसिल है? No, you cannot count because it's not there. If I ask you how many stylus do you have, I have one stylus. You don't have any stylus. But can you count how many stylus do you have? There is nothing to count at all. So zero cannot be the result of any counting. Zero count करके नहीं आ सकता है. Zero will come before the counting starts. Counting start ही नहीं होगी तभी zero आ जाएगा. So one simple example is zero, which is not a natural number. So what is zero? Zero comes in whole numbers. Zero comes in whole numbers. Whole numbers क्या होते हैं? Zero and counting numbers together form the whole numbers. मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स हो सकते हैं या नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, उसमें अगर जीरो को भी ऐड कर दे तो वो हमें मिल जाता है होल नंबर्स. तो वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ नंबर्स नाउ, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. व्हाट इज दैट माइन्यूट डिफरेंस? जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर. व्हाई सो? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज नेचुरल नंबर्स इज अ रिजल्ट ऑफ काउंटिंग. 1 2 3 4 काउंट किया, वट एवर कम्स आउट इज ए नेचुरल नंबर. जीरो कैनॉट कम आउट लाइक दैट. सो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर. नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओवर हियर. कैन द एज बी जीरो? कैन द एज बी जीरो? हमने देख लिया काउंट करके जीरो नहीं आ सकता है, पर एज आ सकती है क्या? जीरो 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 एज कैसे होगी? मिनिमम एज कैन बी 1 ईयर्स. एक साल से छोटा होगा कोई तो 11 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 मंथ. 1 मंथ से भी छोटा हो तो एज को हम लोग डेज में काउंट कर देंगे. 10 डेज, 8 डेज, 5 डेज. और अगर किसी का जन्म अभी अभी हुआ है तो ही इज जस्ट बॉर्न नाउ. स्टिल द एज को जीरो नहीं बोलेंगे हम लोग, सिर्फ यही बोलते हैं उसका जन्म अभी अभी हुआ है. ओके, दिस वॉज अबाउट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. उसके बाहर भी कोई नंबर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं. हमने देखा एज कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, दैट्स डन. बट एनी नंबर अदर देन ऑल दिस थिंग्स? हाँ, हो सकते हैं. While solving an equation, it may happen that the answer comes out to be negative. ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ. लेट्स से 2x plus 9 is equal to 7. Can you solve this equation? इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? क्या होगा? we'll bring 9 to the right hand side, तो 9 नेगेटिव हो जाएगा. what will we get? 2x is equal to 7 minus 9 is equal to minus 2. then we'll bring 2 to the right hand side. क्या मिलेगा हमें? x is equal to minus 2 divided by 2 is equal to minus 1. means we have obtained x is equal to minus 1. Everybody can solve this equation, an equation like this. सब कोई सॉल्व कर सकते हैं? किसी को नहीं भी आता है? किसी को अगर नहीं आता है, you can contact me. You can reply to the video on the Facebook. I'll help you. So basically, you can get a negative number like this. While solving an equation, you can get a negative number. और कैसे आ सकता है? Any other idea how can we get a negative number? इसको मिटा दूं मैं? चलो मिटा देता हूँ. इक्वेशन सॉल्व करने में तो नेगेटिव नंबर आ सकते हैं. और कोई तरीका है नेगेटिव नंबर लाने के लिए? सोचो सोचो. इफ वी सब्ट्रैक्ट 19 फ्रॉम 10, क्या होगा? 10 माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस 9. फिर से आ गया नेगेटिव नंबर. हो सकता है ना ऐसा?
हो सकता है। ऐसे ही देयर मे बी सेवरल क्वेश्चंस हुज आंसर मे कम आउट टू बी नेगेटिव। एक एग्जांपल और दूं मैं। लेट्स से आई गेव यू 10 रुपीज। मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, नहीं दिए, अच्छा मान लो, फिर भी मान लो मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, ठीक है। देन आफ्टर वन डे आई आस्क्ड यू बैक 5 रुपीज, 5 रुपए मेरे वापस कर दो, ठीक है। अगले दिन फिर मैं बोलता हूं मेरे को 6 रुपए और वापस कर दो, ठीक है। तो मैंने टोटल कितने पैसे दिए तुम्हें? हाउ मच मनी हैव आई गिवन यू? मैंने पहले 10 रुपए दिए थे, देन आई टुक ₹5 बैक, देन आई टुक ₹6 बैक। कितने पैसे दिए मैंने? 10 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -1। हाउ कैन आई गिव यू -1 रुपी? दे सकता हूं क्या मैं? नहीं दे सकता हूं, बट वेल सॉल्विंग द इक्वेशन में हैपन, ऐसा हो सकता है। सो हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, सम नंबर्स में भी नेगेटिव। कैसे कैसे आ सकते हैं नेगेटिव नंबर्स, हमें पता चल चुका है अब। तो वी हैव ए अनदर नंबर नाउ, इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब नंबर लाइन याद है हमें? नंबर लाइन कुछ कुछ याद है? थोड़ा तो याद होगा जरूर। इस तरह की एक लाइन हुआ करती थी, बचपन में कभी पढ़ा था। इसमें बीच में हमारे पास 0 हुआ करता था, देन 1, देन 2, देन 3, इस तरह से राइट साइड जाते रहते थे। एंड लेफ्ट साइड में क्या होता था? -1, -2, -3, इस तरह से यह लेफ्ट साइड में भी जाते रहती थी। So this line is called the number line. And all the numbers on this line are called integers. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. Infinite तक, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। So all the numbers are integers, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम लोग 1 से राइट तरफ अगर सिर्फ जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इफ वी मूव टुवर्ड्स द राइट, वी विल फाइंड ऑल द natural numbers. If we start from 0, then we will find all the whole numbers. And if you take the entire number line, then you get the integers. है ना? If you take this entire number line, then you get the integers. सो नंबर लाइन इंटीजर्स का एक पार्ट को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, एक दूसरे पार्ट को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, एंड पूरा का पूरा तो इंटीजर ही होता है। सो सिंपल एज दैट। आसान है ना? हाँ, अब आ गई नई चीज, रैशनल नंबर्स। चैप्टर का नाम तो रियल नंबर है, बट हम लोग आ गए हैं अभी रैशनल नंबर्स के ऊपर। व्हाट इज ए रैशनल नंबर? ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, एंड ही इज ओनली 7 months old. This kid is only 7 months old. So what is his age? 7 months. यही ना होगा? सर क्या पूछते हो आप? 7 months old है, एज ही तो बता रहे हो। What are you asking now? But months में नहीं, age has to be come in years. If I ask your age, will you tell me your age in months? No, you will tell it in years. 12 years, 12.5 years, 13 years, इस तरह से बताओगे ना, नंबर ईयर्स में बताओगे। Why are you telling his age in months? You have to convert this into years. How will you convert it into years? Very simple, 12 से डिवाइड करो, 7/12 years हो जाएगा। अब यह जो नंबर आया, इसी की बात कर रहे थे हम लोग। This number is not a natural number. This is not a whole number. This is not an integer. What is this? This is a rational number.
अब बोलोगे सर ने नाम बदल दिया है, पिछले साल तक इसको फ्रैक्शन बोलते थे, इस साल रैशनल नंबर बोल रहे थे, है ना। लास्ट ईयर तक फ्रैक्शन होता था ना इस तरह का, उसी फ्रैक्शन को अब हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या फायदा हुआ सर? फायदा ये हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स नाउ, दिस इज ऑल्सो ए नंबर, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल ऑल्सो, है ना। इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नंबर। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो क्या होता है रैशनल नंबर, एक डेफिनेशन हो जाए इसके। A rational number is defined as a number that can be expressed in the form P by Q, where P and Q are integers, and Q is not zero. Means 7/12 जो हमारा नंबर था, इसमें P 7 है, Q 12 है, both of them are integers, दोनों integers भी हैं, and Q is not zero, 12 is not equal to 0. This is a rational number. ठीक है, तो नाउ फिर से पढ़ो एक बार, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, मतलब कोई जरूरी नहीं है पी बाई क्यू हो, उसको पी बाई क्यू में लाया जा सकता है। अगर मैं सिर्फ 7 लिख दूं, इसी का रैशनल नंबर अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसी को अगर मैं 7/1 लिख दूं तो आ गया ना, मेरे पास p इज इक्वल टू 7 है, q इज इक्वल टू 1 है, एंड p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया नंबर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस विल बिकम ए रैशनल नंबर। बोले सर क्या बोल रहे हो, ये 7 था, 7 को p बाई क्यू 1 डिवाइड बाई 1 करने से कोई फायदा नहीं हुआ। यस, कोई फायदा नहीं हुआ, बट दिस इज हाउ वी डिफाइन रैशनल नंबर्स। दिस 7 इज ए रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर इस डेफिनेशन पे कैसे सेट हो रहा है, इस तरह से सेट हो रहा है, समझाने के लिए इस तरह से बताना है। 7 को 7/1 लिखना नहीं है कहीं भी, 7 हमेशा 7 ही रहेगा। You never have to write 7 as 7/1, but to understand that 7 is a rational number, you have to write it like this. ठीक है, if I write let's say 3.5, is it a rational number? If you can express it in the form p by q, it is a rational number. If you cannot, it is not a rational number. So can we convert it into p by q? What can we do? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, 35 डिवाइड बाई 10। दिस इज ए रैशनल नंबर। नाउ पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया, दिस इज ए रैशनल नंबर। वेरी सिंपल, है ना, सिंपल। मैथ्स इज ऑलवेज सिंपल। कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी अभी तक? ओके, आज के वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। In between, you have to read the textbook, and in the textbook, you will try to answer the questions that are printed red in color, and उन सारे आंसर्स को बुक में ही लिखना है। ओके, आई थिंक कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको सॉल्व करने के लिए, यू जस्ट हैव टू राइट इट देयर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।